محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار مت کرو، باہم دشمنی اور بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اللہ کے بندوں، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مجلس اتحاد المسلمین کی 64ویں یوم تاسیس کا متحدہ ضلع میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد، مختلف مقامات پر کی گئی پرچم کشی۔ اراضی تنازع کو لے کر رورل رکن اسمبلی و TSRTC چیئرمین پادری ڈی گووردھن کے داماد پر میاں نظام آباد کے شوہر ڈنڈو شیکھر کی جانب سے حملہ، کار کو پہنچایا نقصان، محکمہ پولیس کی جانب سے کی گئی روک تھام۔ بین ریاستی سارق گرفتار، 27,20,000 مالیت کا سونا چاندی موٹر سائیکل دیگر اشیاء ضبط۔ پولیس کمشنر کیانا کراجو کی پولیس کمشنریٹ میں پریس کانفرنس۔ جنگ کے حالات میں پھنسی شہر نظام آباد کے علاقے امان نگر سے تعلق رکھنے والی 2 بہنوں کی مدد کی۔ ڈپٹی میئر ادریس خان نے کی اعلیٰ سیاسی قائدین سے مدد کی۔ بودن رکاس پیٹ میں ہوئے قتل کی واردات، پولیس نے کیا حل، باپ کی نشے کی عادت سے تنگ آ کر بیٹے نے کیا باپ کا قتل۔ ACP راما راؤ کا صحافتی بیان۔ ہلدی بورڈ کے قیام و ہلدی کو مناسب قیمت دینے کے لیے کی ساتھ متحدہ ایکشن کمیٹی کا آرمور میں اہم اجلاس کا انعقاد، وہ اس ماہ کی 3 تا 7 تاریخ تک منعقد ہونے والے پد یاترا کو کامیاب بنانے کی انہوں نے کیا اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی 64ویں یوم تاسیس کا شہر میں جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، تمام مجلسی قائدین مجلس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین قائدین کا خطاب۔ مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد 1958 میں عبدالواحد اویسی نے رکھی تھی، جنہوں نے اپنی بیلوس کارکردگی سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک اہم درجہ دیا اور انہی کی نسلیں مجلس کو پیڑھی در پیڑھی سربلندی تک پہنچا رہی ہیں۔ آج مجلس کے 64 سالہ مکمل ہونے پر مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کی جانب سے شہر کے مرکزی چوراہے نہرو پارک اور پارٹی دفتر پر پارٹی پرچم کی پرچم کشائی صدر مجلس شکیل فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان و ضلع صدر مجلس ایم فہیم کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام مجلسی قائدین کو مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ و ان کے بانیوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں سے واقف کروایا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹرز محمد عبدالغفور مقیم، اعجاز حسین، محمد علی باغبان، محمد منور علی، محمد مستحسن، سید ذکی الدین، افسر بیگ، میر ارشاد علی سمیر، ریاض احمد، محمد نصیر، محمد سلیم و سینئر قائد محمد ایاز، محمد اویس، پرویز، محمد نصرت و دیگر موجود تھے۔ آج نظام آباد ٹاؤن آفس پر فلاگ ہاسٹنگ کی گئی مجلس اتحاد مسلمین کی دوبارہ آئیہ کے 64ویں سال میں ہم نظام آباد کی عوام کو اور نظام آباد کی عوام کی طرف سے محبان مجلس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مجلس کا جب دوبارہ آئیہ ہوا تھا، حیدرآباد دکن ہندوستان میں ضم ہوا تھا، اس کے بعد خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی، اس کے خلاف واحد الدین اویسی
ने जो नारा दिया, नारे को आगे बढ़ाते हुए सालार मिल्लत ने और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस का बेड़ा संभाला। आज मजलिस कमज़ोरों की, मिस्किनों की, गरीबों की आवाज़ है। जमहूरी ऐवानों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की गुस्सन और साथ ही साथ दलितों की आवाज़ बनकर उभरी है। सारे हिंदुस्तान में मजलिस की क़यादत को देखकर लोग मजलिस में जौक़ बजौक़ शामिल हो रहे हैं और हिंदुस्तान में तमाम ही रियासतों में मजलिस अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। इंशाअल्लाह आप अवाम से हुस्न मेरी ये दुआ है कि सालार मिल्लत मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएँ और साथ ही साथ असद साहब की और अकबर साहब की दराज़ी उम्र के लिए दुआ कीजिए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल मुकम्मल होने की खुशी में नौजवानों ने मजलिस की जानिब से शहर के इलाके खिला चौराहे पर हस्बे रुआयत परचम कुशाई, कसीर तादाद में नौजवानों ने की शिरकत। आज शहर निज़ामाबाद के ख़दीम इलाका खिला चौराहे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम की परचम कुशाई तक़रीब का इलाके के मजलिसी क़ायदीन साबिक़ा कौंसलर मरहूम सैयद नईमुद्दीन साहब के फर्जंद व निज़ामाबाद मजलिसी सोशल मीडिया इंचार्ज सैयद मिनहाजुद्दीन वो डिवीज़न नंबर 28 मजलिसी प्रेसिडेंट सैयद जुनैदुद्दीन वो डिवीज़न नंबर 52 मजलिसी प्रेसिडेंट सैयद अयाजुद्दीन वो दीगर की जानिब से की गई। इस मौके पर इलाके के बुजुर्ग व सज्जदा नशीन दरगाह बाबन साहब पहाड़ी मजहर आलम वो अफसर खान की जानिब से सदर मजलिस शकील फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान व तमाम मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि मरहूम सैयद नईमुद्दीन साहब ने इस इलाके में मजलिस के तहत कई फलाही खिदमात अंजाम दी और अपनी पूरी जिंदगी मजलिस के नाम की और इनके बाद इनके फर्जंद ये जिम्मेदारी निभाते हुए इलाके खिला मुगलपुरा में फलाही खिदमात अंजाम देते आ रहे। इस मौके पर सदर मजलिसी व बल्दिया फ्लो लीडर शकील फाजल व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों परचम कुशाई अमल में लाई गई और इन्होंने नौजवानों के इस जज्बे की सितारिश करते हुए मरहूम सैयद नईमुद्दीन साहब की खिदमात को याद किया और मुस्तकबिल में मजलिस को और भी मजबूत बनाने के लिए काम करने की तमाम से ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबार, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, इजाज, मोहम्मद नसीर, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद ज़कीउद्दीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, अफसर बेग, रियाजुद्दीन, कॉप्शन मेंबर व मोतमिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सलीम व सीनियर क़ायद खलील, एजाज पटेल, मोहम्मद अवैस, परवेज व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64वां साल जो दोबारा अहिया किया गया मुस्लिमन में निज़ामाबाद में नेहरू पार्क पर, पार्टी ऑफिस पर और किला चौरस्ते पर फ्लैग होस्टिंग किया गया, जिसमें तमामी अहलियान निज़ामाबाद, मोहब्बान मजलिस, ज़िम्मेदारान मजलिस, कारपोरेटर्स तमाम ने शिरकत की। मैं अवाम की तरफ से और तमामी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो क़ायदीन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मकसद से दोबारा अहिया किया गया था उस मकसद को आगे लेके जा रही है और निज़ामाबाद की आवाम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस पे एतमाद करते हुए हमें दोबारा मौका दिया। इंशाअल्लाह हम तमाम आपकी खिदमत में हैं। जैसा कि मजलिस गरीबों की और खुसूसन मुसलमानों की हमदर्द जमात है और उनके मसाइल को हल करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब जमहूरी ऐवानों में और अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आवाज़ उठाते हैं। जमहूरियत में हमारे मसाइल को हल करने के लिए यकीनन जमहूरी ऐवानों में चुनिंदा नुमाइंदों की ज़रूरत होती है और निज़ामाबाद में जो आप लोगों ने हमें मौका दिया, हम आपके खिदमत में हैं। आपके हर मसाइल को हल करने के लिए हम अपने ऐवानों में आवाज़ उठाते रहेंगे और आपकी दुआओं के हम मुतमन्नी हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस के अहिया का 64वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया के नक्शे में आज अपना रिकॉर्ड कायम कर रही मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को सारे हिंदुस्तान दुनिया के मुसलमान कबूल कर लिए। इनकी क़यादत को आप लोगों को चाहिए कि इनकी उम्र दराजी के लिए असद साहब की, अकबर साहब की दुआ करना है हमको और मजलिस के परचम को आगे बढ़ाना है और हम मुसलमानों को मजलिस के परचम तले
ज़िंदा रहना है और इसकी मुसलमानों की खिदमत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे निज़ामाबाद में जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है। जहाँ आज नेहरू पार्क पे भी झंडा सदर मोहतरम ने आज झंडा चढ़ाया है और डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब भी आज पार्टी ऑफिस पे भी झंडा चढ़ाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और कबूल आमीन फरमाएं। अल्लाह हाफिज़। यूक्रेन में फंसे हुए अमान नगर की दोनों बहनों को जल्द से जल्द मदद फराहम की जाए और वापस हिंदुस्तान लाया जाए। डिप्टी मेयर इदरीस खान का केटीआर व दीगर जिम्मेदारों को ट्वीट्स। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में कई हिंदुस्तानी तलबा हिंदुस्तान वापसी की राह देख रहे हैं और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल कर्नाटका के एक तलबा की इस जंग में मौत की खबर के बाद तमाम हिंदुस्तानी वालिदैन की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। यूक्रेन में फंसे तलबा में से शहर निज़ामाबाद के भी तलबा शामिल है। शहर निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान ने अपने ट्विटर ID के जरिए शहर निज़ामाबाद के इलाके अमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बहनों की मदद करते हुए इन्हें जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाने की तेलंगाना IT मिनिस्टर KTR डॉक्टर S जयशंकर राव कविता से मदद की अपील की। बता दें कि शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बहनें सानिया और बुशरा तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गई थी। इनके वालिद अब्दुल हफीज, वालिदा नूरजहान बेगम इनकी वापसी को लेकर काफ़ी परेशान है। ये फ़ख्र कारवाह सालार मिलत भी, नक़ीब ख़ौफ़ वतन हबीब मिलत भी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम अहिया के मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद का खिताब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं सालगिरह के मौके पर भैंसे में मैंने दारुस्सलाम असद बाबा नगर पर मुकामी मजलिस की जानिब से जश्न मनाया गया। मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसा व मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी परचम की कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि मजलिस अपने रोज़ अव्वल से अपनी तरक्की की सिमत गामज़न है, जिसकी मकबूलियत अब पूरे हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में बढ़ती जा रही है। मोहम्मद जाबिर अहमद ने उत्तर प्रदेश के हुर्रे असम्बली इंतखाबात में मजलिस की जीत के लिए और मजलिस की तरक्की के लिए दुआ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में सदर टाउन मजलिस फैजुल्ला खान, मिर्जा इदरीस बेग, मोहम्मद इम्तियाजुल हक, एडवोकेट मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल माजिद, मोहम्मद मोहित, रहमत खान, अब्दुल सलीम, अब्दुल खदीर, सैयद इरफान, मोहम्मद शरान, राहुल, मोहम्मद इफ्तिखार, मुबीनुद्दीन, कॉप्शन मेंबर, कारकुनान मजलिस अब्दुल लतीफ, मीर नवाब अली, रिजवान खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद तनवीर, शेख खदीर, अब्दुल खदीर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अलमास, मोहम्मद फरहान के अलावा कसीर तादाद में मेहमान मजलिस भी मौजूद थे। आप तमाम को बहसत तमाम मुसलमानों को आज जो हमारी पार्टी की अहिया अमल में आकर 64 साल हो रहे हैं और हमारे पे जो जिम्मेदारी है भैंसे के हम पूरी ईमानदारी के साथ हम उसको निभा रहे हैं और तमाम नौजवानों का और हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे माँ और बहनों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमको 20 साल से इक़्तिदार पर यहाँ पे रखा है। और हमारी जद्दोजहद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करें और हमारे मसाइल जो है हम बराबर आप लोगों के सामने उसको पूरा कर रहे हैं और कोई चीज़ से घबराने और उसकी डरने की बात नहीं है। जैसा कि सालार अहमद हमेशा कहते थे कि मजलिस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से मसाइल हमारे सामने आए, बहुत से मुसीबतें हमने झेले हैं 64 साल के उसमें। लिहाजा आप तमाम नौजवान से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस के जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, जहाँ पे एहतजाज करना है, वक्त आने पर हम बराबर एहतजाज करेंगे और आवाम के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे और हमारे जो वादे थे इलेक्शन में उसको हम पूरा करेंगे। बिला लिहाज मजहब व मिलाद बिना मफाद हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान, इनकी जानिब से जारी समाजी खिदमात की कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने की सताश वो किया इनसे इज़हार तशक्कुर। इदरीस अंकल, थैंक यू वेरी मच। ఈరోజు మా దుబ్బా ప్రాంతంలోని అఖిల్ అనే కుర్రాడికి గత 2 సంవత్సరాల నుంచి హెల్త్ ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల వాడి తమ్ముడు బెడ్కే పరిమితి కావడం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని వారి తల్లి గారు వారి తండ్రి గారు ఎందరో మంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది, ఎంతో మంది ప్రజా ప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది।
కానీ 2 సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఎటువంటి స్పందన రాని పక్షాన నాకు ఈ ఏరియా కార్పొరేటర్ కి మా అక్క దాదాపు ఒక 15 రోజుల కింద ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. నేను వెంబడే అక్క నువ్వు భయం పడకు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తమ్ముడికి వీల్ చైర్ అరేంజ్ చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పి మనము ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నం చేయడంతో నా మిత్రుడు అయాజ్ ఆయన ద్వారా నాకు తెలిసిన విషయం మా డిప్యూటీ మేయర్ ఇద్రీస్ భాయ్ గారు ఇట్లాంటి అవసరం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు గాని పెద్దలకు గాని ఎటువంటి మతాలకు సంబంధం లేకుండా ఎటువంటి కులాలకు సంబంధం లేకుండా వారికి సాయం చేస్తారని చెప్పేసి తెలిసిన విషయాన్ని తెలుసుకుని వెంబడే మేము ఇద్రీస్ భాయ్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి స్పందిస్తూ వారు ఈ రోజు ఆ తమ్ముడికి వీల్ చైర్ వారి సొంత ఖర్చుతోని ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి వారికి ఎంతో మేము రుణపడి ఉంటామని వారి కుటుంబం కూడా వారికి ఎన్నో దీవెనలు అందిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ కుల మత సామరస్యాన్ని చాటుతున్నటువంటి మా నిజామాబాద్ ఎంఐఎం పార్టీకి చెందినటువంటి డిప్యూటీ మేయర్ ఇద్రీస్ భాయ్ గారికి మేము మా 30 డివిజన్ తరఫున మా ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ మహాపర్వదినాన శివరాత్రి మహాపర్వదినాన వారికి ఆ శివుడి దీవెనలు ఆశీస్సులు కలగజేయాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటున్నాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 12 कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की नुमाइंदगी का असर 70 बरक़ी खंभों के जरिए डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर बरक़ी की सहूलत व रोशनी का इंतजाम। शहर का बल्दी डिवीज़न नंबर 12 जिसको नई आबादी वाला इलाका कहा जाता है, नई आबादी होने की वजह से इस इलाके में काफ़ी बल्दी बुनियादी मसाइल दरपेश है, जिसको हल करने के लिए मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से कोशिश की जा रही है। इनकी जानिब से बल्दी एवारों में डिवीज़न की बरक़ी सड़कें, ट्रेन व बरक़ी पोल्स की सहूलियात फराहम करने के लिए बार बार नुमाइंदगी की जाती है, जिसके मद्देनज़र आज डिवीज़न नंबर 12 में 70 बरक़ी पोल्स की मदद से कामों का आगाज अमल में आया, जिसको डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके मौजन कॉलोनी, मुमताज़ नगर, धर्मपुरी हिल्स, रमजानी बाबा कॉलोनी के अलावा सागर हिल फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में लगाए जाएंगे। इन कामों का मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा डिप्टी मेयर इद्रीस खान, सदर सिटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल के अलावा मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने तफसीली दौरा करते हुए कामों का जायजा हासिल किया, जिस पर डिवीज़न के अफराद हफीज अफसर बेग, सदर मजलिस फैज़, शेख अहमद, शेख अयास, अब्दुल अफसर, मोहम्मद इद्रीस ने तमामी मेहमानों का खैर मकदम करते हुए इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर्स ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया और रुकन असम्बली बेगाला कनश गुप्ता व इंचार्ज बल्दी कमिश्नर चित्रा मिश्रा से 100 मस्जिद बरक़ी पोल्स के लिए नुमाइंदगी की। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेक्स की इस्तेफादा कुनिनगान में मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने किए तक़सीम। मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि रियासती वजीर हाउसिंग विमला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर CMRF के तहत रकमी मंजूरी अमल में आई। इसी तरह नुसरत बेगम अब्दुल कलाम को 70,000 और 45,000 के रकमी चेक हवाले किए गए। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने रियासती वज़ीर आला तेलंगाना KCR और रियासती वज़ीर हाउसिंग विमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मंडल परिषद सदस्य शिवलिंगम श्रीनिवास, सरपंच आनंद, MPDC F शास्त्री, संगम अनिल, रमेश दीगर मौजूद थे। जिले टियाला सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र AGR फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में मार्च 7 तारीख को मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जिले टियाला सदर जीवन रेड्डी की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र AGR फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में मार्च की 7 तारीख को मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें मशहूर मारूफ माहिर डॉक्टर की जानिब से बच्चों, बड़ों और ख़वातीन को मुफ्त तशख़ीस की जाएगी और इसके अलावा लैब, एक्सरे, EGC व स्कैनिंग टेस्ट रियायती कीमत में दस्तियाब रहेंगे और 24 घंटे नागहानी सूरत हाल पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम जिले निजामाबाद से 54 सरकारी स्कूल का इंतखाब, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल नज़रअंदाज ना हो जाए, तंजीमें तवज्जो दें। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया जा रहा है। निजामाबाद जिले की हदूद में निजामाबाद साउथ, निजामाबाद नॉर्थ, निजामाबाद रूरल और मोपाल मंडल के 54 सरकारी स्कूल का इंतखाब अमल में लाया गया है। इन सरकारी स्कूल्स में मज़कूरा स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, जिसके लिए मसाइल का जायजा लिया जाएगा। निजामाबाद जिले में 54 सरकारी स्कूल्स का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें हाई स्कूल, UPS, ZPHS स्कूल शामिल है।
में निजामाबाद साउथ के 11 सरकारी स्कूल का इंतखाब किया गया। निजामाबाद नॉर्थ के 12 सरकारी स्कूल, मोपाल में 15 सरकारी स्कूल, निजामाबाद रूरल में 16 सरकारी स्कूल्स का इंतखाब किया गया है। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत पहले मरहले में 35% सरकारी स्कूल्स का इंतखाब किया गया है। सरकारी स्कूल्स में 12 अहम मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है, जिसमें बैतुल खला की तामीर, इहाती दीवार, पीने के पानी, बर्क़ी की सरबराही, फर्नीचर, इमारत को रंग व रोगन, ग्रीन चेक बोर्ड कंपाउंड वॉल, किचन शेड, जमातों की तामीर, डाइनिंग हॉल, डिजिटल क्लासेस का एहतमाम और दूसरी कई सहूलतें फराहम की जाएगी। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम का मंडल जात की सतह पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुकामी मेयर, सरपंच, हेडमास्टर, SMC चेयरमैन और AE बमशमूल जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जा रहा है, जिसके तहत फंड के जारी अमल में लाते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मसाइल का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट जिले कलेक्टर और जिले सतह की कमेटियों को पेश की जाएगी। कमेटी से मंजूर के बाद तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। 15 मार्च के बाद से मुंतखब सरकारी मदारिस में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत अभी तक 54 सरकारी स्कूल का इंतखाब अमल में लाया गया। तलबा और उर्दू असातिज़ा तंजीमों की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के तरक्याती कामों को यकीनी बनाए। ज्वेलरी शॉप की सरखे में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने CP दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में मुजरिम जैसा राम चौधरी को तहवील में लेने का इजहार करते हुए बताया कि मुजरिम जैसा राम चौधरी गुज़िश्ता गुजरात, राजस्थान रियासतों में दीगर प्रॉपर्टी केसों में मुलविस होने के अलावा इस मुजरिम ने भारत के हमरा 2021 अगस्त में कुमार गली में वाक़े SK सिल्वर मर्चेंट पर सरखे की वारदात अंजाम देने के बाइस इनके कब्जे से 41.5 तोले सोना, जिसकी मालियती रकम 21,80,000 और इसी तरह से 4 किलो 170 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये और इसके अलावा 1,50,000 रकम पर मबनी बुलेट गाड़ी, 1,20,000 कीमत वाले लैपटॉप व 3 सेल फोन को जब्त किया गया, जिसकी मुकम्मल मालियती रकम तकरीबन 27,20,000 रुपये तक होने का इंकशाफ किया। इस मीडिया प्रोग्राम में एडिशनल DCP विनीत, अरविंद बाबू, ACP वेंकटेश्वर व दीगर ने शिरकत की। 19 to 21 ఒక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయింది. అప్పుడు కంప్లైనెంట్ వచ్చేసి హర్షన్ రామ్ పురోహిత్ అని, శ్రీ హర్షన్ రామ్ పురోహిత్ అని మన టౌన్లో కంప్లైంట్ చేశాడు. వన్ టౌన్లో అతని దగ్గర చేసే పని అతన్ని అనుమానం ఉంది అతని పైన. అంటే అతన్ని అప్పుడు కన్సర్న్ ఆఫీసర్ అరెస్ట్ చేసి పంపించడం జరిగింది. అక్యూజ్డ్ అప్పుడు భరత్ పురోహిత్ అని. ఈ కంప్లైనెంట్కి అతని బంధువు. సో ఇలా పూర్వపరాల్లోకి వెళ్తే ఏముందంటే ఈ భరత్ పురోహిత్ను ఈ కంప్లైనెంట్ ఇద్దరు కూడా రిలేటివ్స్ అవుతారు. అయితే అతను ఇతన్ని తన వద్దకు వర్షకు బామ్మర్ది అవుతాడు. ఊరు నుండి తెచ్చి షాప్ మెయింటైన్ చేయడానికి బట్టి ఇతను కంప్లైనెంట్ ఊరికి పోయిన సమయంలో వీరి మధ్యలో ఉన్న కోపంతో వీడికి ఒక నేరస్తుడు పరిచయం అవుతాడు. అతని పేరు జై శ్రీరామ్ చౌదరి, సన్ ఆఫ్ దేవరామ్ చౌదరి, క్యాష్ చౌదరి. ఇతను ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్. జునాంజని ఆఫ్ భీమ్ बलमन तालुका जलूर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ट्रैफिक चालानात में रियायत, पहले दिन 5.5 करोड़ रुपए वसूल। ट्रैफिक चालानात में रियायत देने के ऐलान के पहले दिन हुकूमत के खजाने में 5 लाख चालानात की अदायगी से 5.5 करोड़ रुपए जमा हुए। 1 मार्च से 31 मार्च तक इस स्कीम के जारी रहने के ऐलान के पहले ही दिन अवाम ने रियायत का भरपूर फायदा उठाने के लिए ई चालान वेबसाइट का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सुबह से लेकर दोपहर तक वेबसाइट का सर्वर मुतासर हो गया। 1 मिनट में 700 चालानात की अदायगी का सिस्टम कायम किया गया था और इस वेबसाइट के जरिए सैकड़ों अफराद के लॉग इन करने पर इब्तिदाई औकात में वेबसाइट काफ़ी दुश्वारियों का शिकार हो गई और अवाम चालानात की अदायगी के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे। बताया जाता है कि ई चालान के जरिए पहले दिन 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा होने का निशाना रखा गया था,
लेकिन तौक़े से ज़्यादा अवाम ने स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए फौरी तौर पर चलानात की अदायगी में पेशरफ दिखाई, जिसके नतीजे में एक दिन में 5.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। बताया जाता है कि आइंदा दिनों में भी अवाम स्कीम से इस्तिफादा करते हुए चलानात की अदायगी करेगी। पुलिस ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो रियायत के जरिए चलानात की अदायगी स्कीम से 31 मार्च तक भरपूर इस्तिफादा करें। नवी पेट मंडल के मुकाम पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। नवी पेट मंडल के मुकाम पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के पेश नज़र MIM पार्टी मंडल कायदीन अरशद कुरैशी अब्दुल कादिर के ज़ेर निगरानी में पार्टी से मुतालिका परचम को लहराते हुए एक दूसरे को मिठाई की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुक़न्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के ज़ेर निगरानी में तमाम कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और अखलतों और पसमानदा तबक़ात को मुत्तहिद करके अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतखाब में पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अब्दुल रहीम, सलीम कुरैशी, सैयद सोहेल, रिजवान, आदिल, आमिर, अब्दुल रहमान MIM पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने इजहार किया। मुस्लिमीन के जरिए गरीब गुरबा लोगों को और जो बिछड़े लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वो मजहब के साथ है जो दबे कुचले जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के लिए मदद करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कोने कोने में जाकर उनके लिए आवाज़। राजी तनाज़े में RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के दामाद पिंटू पर मियां निजामाबाद के शौहर डंडू शेखर के साथियों की जानिब से हमला। बीच बचाव के लिए खुद डंडू शेखर पहुंचे मौके पर। जिले निजामाबाद के 5 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ साई नगर रोड नंबर 2 में होने वाले जमीन पर कब्जे की तनाज़े में TSRTC चेयरमैन आर्मर MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के दामाद पिंटू पर हमला करने के अलावा इनके जाती कार को नुकसान पहुंचाया। हमले में मियां नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर शामिल है और गुज़िश्ता कुछ साल कबल मियां नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर की जानिब से किए गए गैर मजाज कब्जात की बिना से हम सब वाकिफियत रखते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता इस मामले पर मुलविस होने MLC के कविता की जानिब से इंतबाह दिया गया, लेकिन इसका इन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। అద్దులు చూపిస్తాను ఇష్టం ఉన్నాను అద్దులు చూపించాలని పిలిచి ఆమె అటాక్ చేపిస్తే నాకేమైనా అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తావు అన్న ఏం ఆడోళ్ళు సరే వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు లూజ్ టాక్ చేసిండు నేనేం చేసిన నువ్వు నన్ను పిలిచి ల్యాండ్ మీద పిలిచి అన్న నువ్వు కూర్చొని చెప్పండి ఎట్లా వస్తాడన్నా బిడ్డ ఇది నా అడ్డ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ। कोरोना अमवात पर मुआवजे की अदायगी की तफसीलात पेश करने की हिदायत। वबा से मौसर अंदाज में निपटने पर हुकूमत की सताइश। मरकज की गाइडलाइंस पर अमल करने हाई कोर्ट का मशवरा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है कि कोरोना से फौत होने वाले अफराद के पसमानदगान को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ तफसीलात अंदरून 6 हफ्ते दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने ये हिदायत दी। अदालत ने हुकूमत से कहा कि मरकजी हुकूमत ने 25 फरवरी को कोरोना से मुताल्लिक़ जो नई गाइडलाइन जारी की है इन पर अमल किया जाए। रियासत में कोरोना की सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में दायर की गई मफादामे की दरख्वास्तों की समाअत फी की दरख्वास्तें 2020 से ज़ेर-ए-इल्तिवा है। डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए रियासत में कोरोना टेस्ट, टीका अंदाजी, सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद और इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों की तफसीलात बयान। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 से 17 साल के 84% बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है।
रियासत में 44% अफराद ने दूसरी खुराक हासिल कर ली। 60 साल से ज्यादा उम्र के 4.45 लाख अफराद ने बूस्टर डोज हासिल की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कोरोना के आगाज से फरवरी तक 3.34 करोड़ टेस्ट किए गए, जिनमें 7,87,437 कोरोना केसेस का पता चला। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात की सताइश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत और डॉक्टर श्रीनिवास राव की संजीदा मसाइल के नतीजे में रियासत में कोरोना से कम अमवात हुई है। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने कहा कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में है और केसेस की तादाद में काबिल लिहाज कमी वाक़ हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 105 रुपये महंगा। जारी असम्बली इलेक्शन के नताज से कबल ही अशिया महंगी होने लगी है। तेल, दूध के बाद अब आम आदमी को फिर महंगाई का झटका लगा है। मार्च का आगाज महंगे से ताल्लुक दो खबरों के साथ हुआ है। रेस्टोरेंट में खाना खाना या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये का इजाफा कर दिया है। निजामाबाद RTC बसों में ऑनलाइन टिकटों पर 5% रियायत। मिसेस सुधा प्रमिला, रीजन ऑफिसर निजामाबाद RTC ने अपने चैम्बर में बताया कि इस रीजन के तहत वाक़ जुमला 6 बस डिपो से रोजाना सुबह, दोपहर और शाम के औकात कार में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र रियासतों से वाबस्ता मुख्तलिफ अजला के लिए चलाई जाने वाली सुपर लग्जरी, डिलक्स, एक्सप्रेस और राजधानी बसों में ऑनलाइन टिकटों की जुआई पर मुताल्लिका काम की जानिब से फी टिकट पर रियायत दी जा रही है, जिस पर 1 मार्च तक 31 मार्च के दरमियान अमल आवरी होगी। बोधन के रक्कास पेट में दिल दहला देने वाला कत्ल का वाकया पेश आया, जिस पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर हरकत में आते हुए कत्ल के मामले को हल करके फौजशुदा शख्स के फर्जंद व इनके साथी को रिमांड पर मुंतकिल करने का बोधन ACP रामाराव ने मीडिया के जरिए किया ऐलान। बोधन के ACP रामाराव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बोधन के रक्कासपेट इलाके में इस माह की 22 तारीख को करीम नामी शख्स का कत्ल करने के मुताबिक इनकी बहन हाजी बेगम की जानिब से फ्राहम करदा दरख्वास्त की बिना पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर हरकत में आते हुए कत्ल के मामले को हल करने दोनों को रिमांड पर मुंतकिल करने का इजहार करते हुए बताया कि बोधन के रक्कासपेट में मुकीम शेख करीम बैलों के पैर को नाल मारने का काम मुकम्मल होने के बाद हर रोज में नोशी करके घर के अफराद खानदान को दिक्कत व तकलीफ पहुँचाने के बाद छोटे फर्जंद ने वालिद का कत्ल करने के इरादे को अमली जामा पहनाकर मनसूबाबंदी के तहत इनके अपने दोस्त के साथ मिलकर राड के जरिए हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इस कत्ल से मुताल्लिका केस को हल करने के लिए CI प्रेम कुमार, SI पीटर की जानिब से फ्राहम करदा खदमात की ACP रामाराव ने सताइश की। मुत्तहदा हल्दी बोर्ड का क़याम हुकूमत की जानिब से हल्दी फी कुंटल 15,000 रुपये मुनासिब कीमत देकर खरीदने के मुतालिक 3 तारीख को मुनाकिद होने वाले पैदल सफर को कामयाब बनाने की मुत्तहदा एक्शन कमेटी के कायदीन ने की अपील। आनवुड शहर के मुत्तहदा इलेक्शन कमेटी के कायदीन V प्रभाकर यादव, गौड देवराम लिंगा रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जगत्याल डिस्ट्रिक्ट फोरम यूनाइटेड फोरम की जानिब से मुत्तहदा हल्दी बोर्ड को क़याम के अलावा कुंटल हल्दी को 15,000 रुपये मुनासिब कीमत देने के लिए और हुकूमत की जानिब से लाल जवार को 4,500 रुपये में खरीदने के मुतालिक मार्च की 3 तारीख को मेटपल्ली से शुरू होने वाले पैदल सफर को कामयाब बनाने के साथ साथ 3 से 7 तारीख तक होने वाले पैदल सफर में तमाम किसान शिरकत करके इत्तेहाद और एकजहती को कायम करने की ख्वाहिश। राज्य सोग्राह धरनी टाउनशिप में प्लाटों की नीलामी के मुतालिक मार्च 7 तारीख को गैलेक्सी में शौर बेदारी प्रोग्राम का क़याम अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश V पाटिल ने किया ऐलान। जिले कामारेड्डी गैलेक्सी में राजीव सोग्राह धरनी टाउनशिप के मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर जितेश V पाटिल ने शिरकत करते हुए कहा कि प्लाटों की अवामी नीलामी के मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम मार्च 14 से 17 तक कुछ प्लाटों को फरोख्त किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले अफराद को हराज में शिरकत की ताकीद की और इन्होंने मजीद कहा कि 44वें नंबर कौमी शाहराहों के पास वो जिले दफ्तर के अहाते में धरनी टाउनशिप मौजूद है और वहां पर तमाम बुनियादी सहूलतें फ्राहम की जाएगी और ये प्लाट्स DTCP लेआउट अप्रूवल होने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस का मुत्तहदा जिले में जोश खरोश के साथ इनेकाद, मुख्तलिफ मकामात पर की गई परचम कशी।
अराजी तनाज़े को लेकर रूरल रुकन असम्बली व TSRTC चेयरमैन पार्टी गोवर्धन के दामाद पर मियां निजामाबाद के शौहर डंडू शेखर की जानिब से हमला, कार को पहुंचाया नुकसान, महकमे पुलिस की जानिब से की गई रोकथाम। वैन रियासती सरक गिरफ्तार, 27,20,000 मालियत का सोना, चांदी, मोटरसाइकिल, दीगर अशिया जब्त। पुलिस कमिश्नर कियाना कराजू की पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग के हालात में फंसी शहनिजामाबाद के इलाके अमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनों की मदद की। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की आला सियासी कायदीन से मदद की। बोधन रकासपेट में हुए कत्ल की वारदात, पुलिस ने किया हल, बाप की नशे की आदत से तंग आकर बेटे ने किया बाप का कत्ल। ACP रामाराव का सहाफती बयान। हल्दी बोर्ड के क़याम व हल्दी को मुनासिब कीमत देने के लिए किसान मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का आरमूर में अहम इजलास का इनेकाद व इस माह की 3-7 तारीख तक मुनक़िद होने वाले पद यात्रा को कामयाब बनाने की इन्होंने की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।